Bismillahirrahmanirrahim. Read with me my third lesson for English learners who want to learn English language. In my previous lecture, I learned you about vowel and use of vowels, how they use in different words at different places from beginning to end position of the word. Now we learn about the consonants. As you know, there are 26 letters in English language, in which 5 are vowels and remaining are called, which are 21, are called consonants. So consonants also make some specific sound that they are having their own sounds, but instead of their own sounds, they produce some other sounds when they combine with some consonant or vowel letters. So let's have a look on these sounds. First of all, we start from B. B has its own sound when we look at the word bulb. In bulb, it is the beginning sound and end sound both are b, so it producing b sound in this. And after this, bat, second one is bat, so it is producing b sound. And book it produce same good b sound. And but when b combine with other consonant, like when consonant m will come before b, so its sound becomes changed, like bomb, bomb, bomb. So b will be silent and we will produce m, bomb. And just like this, thumb, 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 when it comes before when b comes after m, or m, letter m comes before b, it produce sound m, thumb, thumb. So it look at these words, how it produce different sounds, like lamp, lamb. In this, b is silent. So we can say when m comes before b, m अगर लेटर b से पहले आ जाए, लेटर b से पहले अगर लेटर m आ जाए किसी भी वर्ड में, तो उसमें b साइलेंट हो जाता है. So we produce it lamb, thumb, bomb, like this. And the now we see how sound letter c produce its sound. Letter c has its specific sound seen, but sometimes it produce seen sound and sometimes it produce k sound. When it comes in the start of a letter, start of a word, like cap, so it produce k sound. So if vowel A comes after C, it produce calf sound. But if vowel C and vowel I comes after C, it produce seen sound. Let's have a look on sounds of C. C has also different sound, like cement, cement. Then vowel E is coming after, vowel E is coming after C, then it produce seen sound. And when vowel I is coming after C, CIVIL, civil, it produce seen sound, civil. And when vowel O is coming out after C, letter C, then it produce calf sound. So we can say when letter A or letter A or letter O is coming after C, it produce calf sound, coke, cat, kha. And when letter E or and I is coming after C, it produce seen sound. We are having another letter which is like vowel sound Y. When Y comes after C, it it produce like we say uh, cycle and cyclone, then it produce seen sound. We can say that when y comes after c, it produce seen sound. Like when letter c combined with h, it
बिकम्स अ डायग्राफ, यानी कि ये एक जब दो कॉन्सोनेंट आपस में मिलके एक आवाज़ पैदा करें इसको डायग्राफ कहते हैं। कोई भी दो लेटर जब आपस में मिलके एक आवाज़ पैदा करें उसको डायग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे सी एच एज डायग्राफ चूज हुआ है। व्हेन सी एंड एच बोथ मिक्स विद ईच अदर दे प्रोड्यूस साउंड लाइक चर्च, चेयर, and after this we can see then letter ch make different sound like chocolate. when o comes after when o comes after ch and it following r as well, then it produce calf sound like chord. And when we come in when we see the position of c in other words like special, some people say how it is producing sheen sound. So Leonard, it produce sheen sound when I and A comes after C, it produce शीन साउंड। हमेशा याद रखें जब C के बाद I और A की I और A आए तो वो शीन की साउंड देगा। There are so many examples like this, that social, special and there's ocean। तो जब सी के बाद ई और आई भी आए तो वो शीन की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद लेटर सी के बाद हम लेटर डी पे आ जाते हैं। लेटर डी की अपनी साउंड ड होती है एज वी नो। तो जो ये अपनी साउंड ही प्रोड्यूस अमूमन करता है जब डी जे बिगिनिंग में आए, जैसे डॉग, डू, लाइक दिस साउंड्स। And now we come on the different positions of D. Like this, we know that when it comes in the middle or when it comes at the end of the word, it produces same D sound, but it change its sound when it comes with another vowel or an other it followed by some other consonant, like this edge, edge. uh, when vowel comes before d, it produces its sound, it silents its sound. In this word we can say d sound is silent. Knowledge, knowledge, in this g is coming after d and e is coming before d, so it means e and g both मेक द साउंड ऑफ डी साइलेंट। उन्होंने इसकी साउंड को साइलेंट कर दिया। सो ये मखसूस वर्ड है जिसमें डी की साउंड साइलेंट हो जाती है। इसके बाद समटाइम जब वाउल ए इससे पहले आए और जे इसके बाद आए तो इसकी साउंड साइलेंट भी हो जाती है, इसकी साउंड फिर साइलेंट हो जाती है। जैसे एडजेक्टिव, ए डी जे ई सी टी ई आई वी ई, एडजेक्टिव हम नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इस तरह से जो लेटर डी है इसकी डिफरेंट साउंड्स होती हैं। जैसे अगर हम कहें लेटर डी के बाद लेटर ई आता है, लेटर ई की भी अपनी साउंड है। लेटर ई अपनी अलिफ की साउंड देता है जैसे कि हमें पता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में अलिफ की साउंड देता है, समटाइम ये साइलेंट साउंड भी देता है, समटाइम ये साइलेंट साउंड देता है। इसी तरह से हम अब इसको देख लेते हैं। लेटर ई के बाद लेटर एफ हमेशा फे की आवाज़ देता है, जैसे फादर, फायर, लाइक दिस। लेकिन लेटर एफ उस टाइम इसकी आवाज़ भी ये दूसरे वर्ड की आवाज़ को साइलेंट कर देता है, अपनी आवाज़ को साइलेंट नहीं करता, दूसरी की आवाज़ को साइलेंट करता है। जैसे CALF, काफ, अगर इसमें पहले इस एफ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो इसकी आवाज़ को साइलेंट करके अपनी आवाज़ उस पर भारी कर लेता है। तो इसी तरह से गॉफ में भी आप देख लें कि इस पहले एल आ रहा है, अगर एफ से पहले कहीं एल आए, कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो उसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं लेटर जी पे। लेटर जी की जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इसकी 2 या 3 साउंड्स होती हैं। एक इसकी जी साउंड होती है, दूसरी इसकी गाफ साउंड होती है। तो इसमें तो ये सिंपल अपनी साउंड दे रहा है, ग ओ गो और GAP गैप। लेकिन अगर लेटर जी के बाद वाउल आई आए तो इसकी साउंड जीम में तब्दील हो जाती है, तो इसकी साउंड जीम में तब्दील हो जाती है।
तो इसी तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिंजर और जायंट, यानी कोई भी वाउल इसके बाद आ रहा है तो ये इसकी साउंड जो है वो उसमें जीम में तब्दील होगी। लेकिन इसका एक और भी इसकी स्पेशलिटी होती है कि जब ये किसी वाउल से पहले आता है किसी वर्ड के दरमियान, जैसे कि HIGH हाई, तो इसके अलावा हम इसको हाइग नहीं पढ़ेंगे, हाइग नहीं पढ़ेंगे, इसमें जी साइलेंट हो गया। यानी कि कॉन्सोनेंट एच से पहले जब भी जी आता है तो जी साउंड विल बिकम साइलेंट, तो ये साइलेंट हो जाती है। इसी तरह से ब्रिज, ऑल दो, यानी कि एच से पहले आप जहाँ भी देखेंगे कफ, यानी कि ये डिफरेंट साउंड देगा, साउंड सेम नहीं देगा। हम इसको कॉ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कफ पढ़ेंगे। यानी कि जब जी एच इकट्ठा होके आता है, सम टाइम ये आई की साउंड देता है और सम टाइम ये फे की साउंड देता है। ये हमें इस तरह से इसको देखना पड़ेगा कि आमतौर पे ये जब इससे पहले जी से पहले लेटर यू आए तो ये फे की साउंड देगा। यानी इसके आखिर में जी और एच जब इकट्ठे आए, जी के बाद आए एच, तो ये फे की साउंड देते हैं। इसके बाद हम लेटर एच पे आ जाते हैं। लेटर एच आमतौर पे ह की ही साउंड देता है, लेकिन समटाइम ये अलिफ की आवाज़ भी देता है, अलिफ मद्दा की आवाज़ देता है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये लेटर एच, जैसे हम कहें हाउस, HOU, ऐसी हाउस, HORESE हॉर्स, तो ये अपनी प्रॉपर अपनी सिंपल साउंड दे रहा है। हाँ, लेटर एच हे की साउंड दे रहा है। लेकिन यहाँ पे HOUR, यानी जब इसके बाद वाउल ओ और दो वाउल इकट्ठे आ रहे हैं तो ये अलिफ मद्दा की साउंड देता है, आर, जैसे कि आर। और इसके बाद हाउ एवर, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एच, ऑनर, ऑनर, ऑनर में ये लेटर ओ जो है इसके बाद आ रहा है, लेकिन इसके बाद फिर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जो ये जब ये इस तरह से यहाँ पे इसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाए वाउल ओ के बाद, तो इसकी इसकी जो साउंड है फिर भी अलिफ ही प्रोड्यूस होगी। कभी अलिफ मद्दा प्रोड्यूस होगी, कभी कभी अलिफ व ओ प्रोड्यूस होगी। इसके बाद हम लेटर आई पे आ जाते हैं। लेटर आई जो है उसकी साउंड जैसे मैंने आपको बताया आई ही होती है, लेकिन जब वो किसी वर्ड के सेंटर में आता है तो समटाइम ज़ेर की आवाज़ देता है और समटाइम छोटी जे की आवाज़ भी देता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं लेटर जे पे। लेटर जे जो है वो जीम की ही आमतौर पे साउंड देता है, इसकी आवाज़ आमतौर पे तब्दील नहीं होती। और इसके बाद हम आ जाते हैं लेटर के पे। लेटर के जो है वो अमूमन काफ की आवाज़ देता है, काफ की आवाज़ ही प्रोड्यूस करता है लेटर के। और इसमें जो इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जैसे हम कहें किंग, तो ये के की आवाज़ दे रहा है। यहाँ पे अगर हम सी को देखेंगे तो सी भी आपको पता है कि के की आवाज़ देता है। जैसे क्लॉक, तो इसके एंड पे ये काफ की आवाज़ दे रहा है। बुक, एंड पे एंडिंग साउंड इसकी काफ है। लेकिन के की सिर्फ एक ही स्पेशलिटी है कि एक तो ये कि जब ये एच के साथ आए तो खे की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, और जब के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो इसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है। के के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो इसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है। जैसे नाइफ, नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो इसमें एन की आवाज़ आ रही है, इसकी नहीं आ रही। इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं एल पे। तो एल की साउंड लाम ही रहती है जहाँ भी इसको प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि लाइफ, लूज। और इसी तरह से जब एल के बाद एफ आए तो एल की आवाज़ साइलेंट हो जाती है और ये अगले कॉन्सोनेंट की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि वॉक, जैसे कि टॉक, जैसे कि यहाँ पे हम पम, पल्म। तो इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं, काम, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल साइलेंट हो गया। एल के बारे में हमेशा याद रखिए, इसके बाद जब भी कॉन्सोनेंट आता है ये साइलेंट हो जाता है। अब हम एम पे आ जाते हैं। एम अपनी मखसूस साउंड देता है। मीम, मीम की साउंड जैसे कि मैन। और इसके लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि जब एम के बाद बी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, बी साइलेंट हो जाता है। बी तो एम जो है जब किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ मिल के आए तो ये एक मुनफरिद साउंड देता है। सिर्फ थम नहीं होगा, थम, थम, मुंह के अंदर जैसे साउंड होती है। लैम्प,
अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एन पे, लेटर एन पे। लेटर एन हमेशा अपनी नून की साउंड देता है जो हरूफ उर्दू का हरूफ तहजी है, लेकिन सम टाइम जब ये एम के साथ मिल के आता है तो सॉलमली, तो ये अपनी आवाज़ को खामोश कर देता है। एन बिकम साइलेंट एंड वी प्रोड्यूस ओनली एंड साउंड solemnly, like column is a big example of these both when they come together in a word. और उसके बाद ओ लेटर, ओ की आवाज़ तो सेम ही होती है इस और हर जगह में मखसूस ही उसकी आवाज़ होती है। इसके बाद पी 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 जब शुरू में आता है किसी वर्ड के तो पे की साउंड देता है, लेटर हरूफ तहजी पे की, पेंसिल। लेकिन पी जो है वो जब किसी भी कॉन्सोनेंट्स में से पहले आए तो फिर इसकी साउंड आमतौर पे तब्दील हो जाती है। जैसे ये कॉन्सोनेंट एच से पहले आया तो साइकोलॉजी, तो क्या एस से पहले आया, पी की आवाज़ साइलेंट हो गई। इसके बाद एन से कॉन्सोनेंट एन से पहले आया नमूनिया, तो इसकी आवाज़ साइलेंट हो गई। इसी 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 तरह से जैसे नमूनिया फेफड़े की सूजन होती है जिसको टीबी भी कहते हैं, तो ये पी की आवाज़ में साइलेंट होगी। पी व्हेन पी विल कम बिफोर द consonant, then it consonant s, its sound becomes silent। तो इसके बाद क्यू 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 जो है वो अपनी मखसूस आवाज़ क्यू ही देता है, जैसे क्विल्ट, क्वाइट, और इसमें कोई और डिफरेंट आवाज़ें प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बाद आर है, आर जो है वो रे की साउंड देता है, हरूफ तहजी रे की, जैसे रोप जिस बिगिनिंग में आ जाए जो एंड पे आ जाए, जैसे सिंगर। लेकिन जब ये किसी वर्ड के सेंटर में आता है, यानी वाउल वाउल ओ के बाद आता है, जैसे एफ ओ आर एम, फॉर्म, तो ये अपनी आवाज़ को साइलेंट कर देता है। जैसे इसके बाद प्रोड्यूस नहीं हो रही फॉर्म। इसी तरह वॉर्म, तो इसमें आर की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती जब ये किसी कॉन्सोनेंट से पहले आता है। इसके बाद लेटर एस पे आ जाते हैं। लेटर एस जो है वो अपनी साउंड सीन ही आमतौर पे देता है, लेकिन जब लेटर एस एच के साथ मिल के आता है तो ये शीन की साउंड प्रोड्यूस करता है, रश और शोर। और इसके अलावा इसकी कोई ख़ास स्पेशलिटी नहीं है, ये अपनी ही साउंड पे रहता है। इसके बाद लेटर टी है, लेटर टी की अपनी साउंड टे की है, हरूफ तहजी टे की साउंड होती है। टॉय, इसी तरह से ये डिफरेंट अपनी साउंड्स देता है। अब इसमें एक चीज़ और बताने की थी एस की, कि जब एस टू टाइम जब इकट्ठा होकर डबल एस आ जाता है तो वो शीन की साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में जब वाउल आई ओ आ रहे हों तो ये शीन की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो लेटर टी जो है उसकी वो अपनी साउंड तो सेम रखता है, लेकिन समटाइम ज़बर की और समटाइम ज़ेर की साउंड देता है, जैसे कि हमने ये पिछली एग्जांपल्स में पढ़ लिया। तो लेटर टी की जो सबसे ज़्यादा, जैसे पिक्चर, पिक्चर जब ये लेटर टी के बाद बाउल यू आए तो इसकी साउंड चे में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? चे में। और इसी तरह से लेटर टी के बाद जब आई ओ आए तो इसकी साउंड शीन में बदल जाती है, क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन, सजेशन, तो इसकी आवाज़ शीन में बदल गई। लेटर टी जो है वो सबसे ज़्यादा वैरायटी रखता है, सारे कंसोनेंट्स में सबसे ज़्यादा वैरायटी लेटर टी में है, कि लेटर टी जब एच के साथ मिल के आता है समटाइम दाल दाल की साउंड देता है, और समटाइम आपने देखा होगा कि डिफरेंट साउंड भी, जैसे आमतौर पे किसी इंग्लिश में को थिन, थिन, ये कभी सॉफ्ट साउंड देता है, सभी कभी थिक साउंड देता है, जैसे दिस, थिन। इसी तरह से लेटर टी जब डायग्राफ सी एच के साथ मिलके आता है तो इसकी साउंड साइलेंट हो जाती है, जैसे मैच, इसमें मैट टच नहीं मैच होगा। इस तरह हैच, हम डिफरेंट लफ्ज़ इस तरह से इसके टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लेटर टी के बाद वी आता है, वी की साउंड आमतौर पे अपनी ही साउंड होती है, वाओ की साउंड, जैसे ये वोक, वेंचर, इस इस तरह की साउंड। इसके बाद लेटर डब्ल्यू जो है इसकी साउंड भी टी की तरह बहुत वैरायटी रखती है, कि लेटर डब्ल्यू की साउंड डब्ल्यू ई वी होती है, डब्ल्यू आई एच विश होता है, वॉल, ये यहाँ पे वाव की प्रॉपर साउंड देता है। लेकिन लेटर डब्ल्यू के बाद जब लेटर एच आता है तो वो उसकी जो साउंड है वो हे में तब्दील हो जाती है, जैसे हु, होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई होल, हम इसको वो होल नहीं पढ़ेंगे, होल पढ़ेंगे। इसी तरह से इसकी तीसरी स्पेशलिटी ये है कि जब लेटर डब्ल्यू के बाद आर, लेटर डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू की
जो साउंड है वो खामोश हो जाती, साइलेंट हो जाती, इट बिकम्स राइट। डब्ल्यू साउंड इज बिकम्स साइलेंट। डब्ल्यू के बाद वाई आता है। अच्छा, वाई ऐसा, सॉरी, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। एक्स जो है आमतौर पे स्टार्ट में कम ही आता है, स्टार्ट में आता है अपनी एक्स साउंड देता है और एंड पे भी आता है अपनी एक्स साउंड देता है, जैसे बी ओ एक्स बॉक्स, डब्ल्यू ओ एक्स एफ ओ एक्स फॉक्स। उसके बाद जो है डब्ल्यू के बाद हम जो एक्स एक्स रे में ये अपनी साउंड देता है। इसके बाद हम देखते चलेंगे वाई। वाई में ये अपनी कैसे साउंड देता है। वाई वाई अपनी साउंड वही जो मैंने आपको बताया था वाओ की साउंड देता है, जैसे ये की भी साउंड देता है आमतौर पे, यस, मैनी। लेकिन समटाइम ये जेर की और छोटी जे की साउंड देता है एंड पे। जैसे शुरू में आया तो वाई यस यस है, लेकिन एम ए एन वाई जब एंड पे इसकी साउंड आई तो इसने छोटी जे की साउंड दी। और इसी तरह से जब वाई इस ये शुरू में आया फिर इसने जे की साउंड दी। समटाइम ये आई की साउंड भी देता है, जैसे स्काई, स्काई एंड पे आया तो ये वाई की साउंड दे रहा है। इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं, ये सेंटर में भी आए वाई तो आई की साउंड देता है। इस तरह में जेड पे आ जाते हैं। जेड शुरू में आता है तो जे ज्वाद जे और जाल की साउंड देता है। और जो है जब एंड पे आएगा तब भी ये जे की ही साउंड देगा, लेकिन इसकी साउंड्स जैसे रियाज एंड पे ज्वाद आएगा, एंड पे आएगा तो ज्वाद की साउंड देगा। डोज एंड पे आएगा तो जाल की साउंड देगा। ये था आज का लेसन कॉन्सोनेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।